Today I will discuss some questions from exercise 2.3. Which of the following relation or function give reason if it is a function, determine its domain and range. Given relation is given here. First, f is equal to 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. Here no two ordered pairs have the same first component. First component are different given here. Then the given relation is a function and its domain will be the set of first element of ordered pairs are said to be domain. Then domain is equal to 2 5 8 11 14 17 and set of second elements of given ordered pairs will be range. Then range is equal to 1 because second element of every ordered pair is 1. Its second part, given function is f is equal to 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. Here no two ordered pair have the same first component. First component of every ordered pair is different: 2 4 6 8 10 12 and 14. Then the given relation is a function. If first component are not different, any component is repeated, then given function will be not, then the given relation will be not a function. But here have no ordered pairs have the same first component, then given relation will be a function. Then its domain will be the set of first element is said to be domain. Then domain is equal to 2 4 6 8 10 12 14 and set of second element will be range. The range is equal to 1 2 3 4 5 6 7. Second element will be given here. And its third part, given relation is 1 3 1 5 2 5. f1 is equal to 3. 1 has image 3. f1 is equal to 3 and 1 has another image 5 given here. f1 is equal to 5 and 2 has image 5. f2 is equal to 5. ऑर्डर्ड पेयर का के फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट इमेज कहलाता है, तो 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है. तो ये फंक्शन की डिफिनीशन जो है हमारी वो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन हैविंग यूनिक प्री इमेज इन कोडोमेन. लेकिन यहाँ तो डोमेन का एक एलिमेंट 1 जिसकी इमेज 3 भी है और 5 भी है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. 1 हैज़ 2 इमेज 1 and 5 since 1 appears more than once of first component in ordered pairs of f. Hence the relation is not a function. Second question is given here. Find the domain and range of the following real function. Function fx is equal to minus mod x. We have fx is equal to minus mod x. Clearly fx is less or equal to 0. When you will take x is equal to 0, then fx is equal to 0. Otherwise fx is clearly less than 0. mod x है, निगेटिव भी लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन mod के पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसकी पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी और 0 आएगी जब यहाँ x को आप 0 पुट करेंगे. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो x की वैल्यू का सेट जो भी लिख सकते हैं हम इसमें, वो डोमेन कहलाएगा, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो और रियल रहे. तो क्या हो सकता है डोमेन? देन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r. कोई भी रियल नंबर x को हम देंगे, ये फंक्शन डिफाइंड होगा और रियल होगा. देन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r और x की वैल्यू रियल रखने पर माइनस मॉड x की जो वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाएगा. तो रेंज क्या होगा? आप अगर इसको 0 रखेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज ये सारी वैल्यू निगेटिव तक आएगा.
-5 -10 -100 माइनस इनफाइनाइट तक आएगा। देन रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0 क्लोज इंटरवल। 0 आएगा इसलिए हम 0 पर क्लोज लगाए हैं। सर्कुलर ब्रैकेट ओपन इंटरवल डिनोट करता है, माइनस इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है इसलिए माइनस इनफाइनाइट पर इंटरवल ओपन रखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। f is not defined for 9 minus x square less than 0, but f will be defined and real when 9 minus x square is greater or equal to 0, adding both side -9। ये इनक्वलिटी सॉल्व करने का तरीका है। हम ट्रांसपोज नहीं करते हैं, किसी वैल्यू को हटाना है तो प्लस या माइनस उसी का साइन ऐड करके उस वैल्यू को कैंसिल करते हैं। इसको डिटेल में हम इनक्वलिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लीनियर इनक्वलिटी एक चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो -9 ऐड बोथ साइड, -9 + 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 -9, 9 कैंसिल टू 9, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू -9, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई निगेटिव साइन, देन साइन ऑफ इनक्वलिटी विल बी चेंज। निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर इक्वल से लेस आर इक्वल टू हो जाएगा। then multiply both side by -1, then sign will be changed, x square is less or equal to 9 and is implies that x square less or equal to 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनक्वलिटी का एक फार्मूला है जिसको याद रखना है। इफ़ x square less or equal to a square is implies that -a less or equal to x less or equal to +a। अगर x square less or equal to a स्क्वायर के है जहाँ a रियल नंबर है तो x की वैल्यू -a से और +1 तक लाई करेगी। इक्वल का साइन है इनक्वलिटी पर इसलिए क्लोज इंटरवल डिनोट करता है, क्लोज इंटरवल -a to +a। तो यहाँ a की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए। देन इज इम्प्लाइज दैट -3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 3। इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to +3। इनक्वलिटी पर इक्वल का साइन है इसलिए ये क्लोज इंटरवल डिनोट करता है। इसको हमने इंटरवल को सेट में डिस्कस किया है। तो x की वैल्यू का सेट ही डोमेन है तो x इक्वल टू हो जाएगा डोमेन इक्वल टू -3 to +3। अब रेंज फाइंड करना है। लेट y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज एक्स स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, देन x इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तभी ये फंक्शन होता है। प्लस माइनस दोनों ले लेंगे तो x की y की हर एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आएगी तब ये फंक्शन ही नहीं होता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने पर ही ये फंक्शन होता है। x विल बी डिफाइंड एंड रियल व्हेन 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 से ग्रेटर लेंगे तभी ये रियल होगा, नहीं तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आने पर ये x की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। एडिंग बोथ साइड -9 क्योंकि 9 को हमको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। -9 + 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 -9, 9 कैंसिल टू 9, माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू -9, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। तो इनक्वलिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फिर यही फार्मूला लगा देंगे, x की जगह पे y है तो क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज दैट -3 लेस आर इक्वल टू वाई लेस दैन 3। यानी फिर यही फार्मूला लगेगा, a की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी कभी भी, y निगेटिव नहीं आएगा। देन y विल बी नॉट निगेटिव, देन रेंज ऑफ y इक्वल टू y सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू 3। यानी 0 से लेस वैल्यू नहीं होगी, y की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। यहाँ रखने पर देखिए x को ऐसी वैल्यू हम y की वैल्यू निगेटिव आएगी ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगी। देन रेंज क्या होगा, रेंज सेट होगा, रेंज इक्वल टू y सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू 3। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन रेंज इक्वल टू 0 to 3। ओके।